Hello students, so today I am going to complete the remaining examples of last type of integrals. So yesterday in the previous lecture we completed only one example of that type. What was that type? That type was integral of the form 1 upon a plus b cos x, 1 upon a plus b sin x, or 1 upon a plus b cos x or plus c sin x dx. वो उसके एग्जाम्पल्स हैं. साइन एक्स कॉस एक्स होना जरूरी है, दूसरा कौन सी भी टर्म नहीं चलेगी. और इस यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है. वी हैव टू पुट हियर tan x by 2 इज इक्वल टू t. यहाँ पर क्या पुट करना है? tan x by 2 इज इक्वल टू t. देन आफ्टर डिफरेंशिएशन विल गेट द टर्म ऑफ dx. What was dx? dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square. Sin x is equal to 2t upon 1 plus t square. And cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. ये पहला एग्जाम्पल हुआ है हमारा. एक सेकंड थर्ड हम ट्राई करेंगे. लेट अस सी द एग्जाम्पल नंबर सेकंड. I is equal to integration 1 upon or dx upon 4 minus 5 cos x. So direct put a tan x by 2 is equal to t. Find out dx. dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square, and cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. sin x टर्म एग्जाम्पल में नहीं है तो sin x की टर्म लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर. सो देयरफॉर इंटीग्रल I becomes dx is numerator, that is 2 dt upon 1 plus t square. 4 minus 5 times cos x is 1 minus t square upon 1 plus t square. This is 5 times cos x. Cos x is this 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay, now this is equal to numerator as it is 2 dt upon 1 plus t square. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 प्लस 4t स्क्वायर. ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर. After cross multiplication, this denominator definitely get cancelled. Now what? Write the remaining term. Numerator becomes 2 dt. I is equal to 2 dt only divided by 4t square plus 5t square 9t square. 4 minus 5 minus 1. Taking 2 common, 1 divided by 2 outside there. Make the coefficient of t square as unity dt at a time. That numerator 2 is a coefficient, constant term taking outside the integral, that is 2 dt becomes only 1 dt. Taking 9 common from the denominator because the requirement is what? The coefficient of t square must be unity. So that's why 9 common from the denominator. So it is a 2 by 9 integral 1 upon t square minus 1 by 3 square dt. Now the important proper selection of special integral. यहाँ पर कौन सा स्पेशल इंटीग्रल वो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है. 1 upon x square minus a square. X square is a term of variable, a is a term of constants. X square minus a square means formula number second. You mention the formula. This is 2 by 9 as it is. 1 by 2a log of x minus a divided by x plus a t minus 1 by 3 upon t plus 1 by 3. ये 2 और ये 2 कैंसिल, ऊपर 3 जाएगा. 3 by 9 log of क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3t minus 1 divided by 3t plus 1 plus c. 3t minus 1 upon 3t plus 1 plus it. This 3 gets cancelled. 3 by 9 is 1 by 3 log of 3 tan x by 2 minus 1 upon 3 tan x by 2 plus 1 plus c. ये उसका आंसर. Is it clear? This is the solution of example number 3. Very simple procedure. Example सिर्फ आपको पहचानना है ये कौन सा टाइप का है.
पीछे 2-3 टाइप हुआ है हमारे, ये साइन एक्स कॉस एक्स है तो ये उसका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बाकी पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल, दैट इज वी कॉल आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। ओके, विल ट्राई नंबर 3 इमीडिएटली। Now example number 3 from the same. Look at the example number 3, this both sin and cos at a time. I is equal to example number 3, integral 1 upon or dx upon 2 plus cos x minus sin x. So no doubt substitute here. Tan x by 2 is equal to t, dx becomes 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एग्जाम में डायरेक्ट यही लिखना है, बीच का डिफरेंशिएशन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर cos x है, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन x है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देयरफॉर I इज इक्वल टू dx इज 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 2 cos x is 1 minus t square upon 1 plus t square. Sin x is 2t upon 1 plus t square. So after this, as usual, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर है, दैट इज एलसीएम। सिर्फ इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस 2t स्क्वायर, ये एज इट इज प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस 2t। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एलसीएम the same common denominator definitely cancel, so this examples I becomes, so integral I becomes, numerator is 2 dt डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर, ये माइनस 2t, ये प्लस 3, माइनस 2t प्लस 3, राइट। 2t, ये माइनस 2t, 2 प्लस 1 प्लस 3, दिस 2 आउटसाइड द इंटीग्रल, dt डिवाइडेड बाय, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलरेडी कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज 1, यूनिटी है, सो डायरेक्ट ऐड एंड सब्सट्रैक्ट बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर इज 1, 4 4 कैंसल, प्लस 1 करो, माइनस 1 करो, प्लस 3। ऑलवेज ऐड एंड सब्सट्रैक्ट बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इन बिटवीन द टर्म ऑफ t एंड कांस्टेंट टर्म। नाउ दिस बिकम्स 2 आउटसाइड dt डिवाइडेड बाय, this term is perfect square of t minus 1 whole square. Square root of t, square root of this is t, square root of 1 is 1, second sign minus sign. Now constant term 3 minus 1 is plus 2, plus 2 means root 2 square, plus 2 आ गया, plus 2 किसका स्क्वायर है, root 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, दैट इज व्हाट, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 by tan inverse of x by plus c, so 1 by root 2 tan inverse of t minus 1 by root 2, this is x variable term and this is constant term, x square plus a square. Okay, now 2 by root 2 is root 2 tan inverse of tan x by 2 minus 1 by root 2 plus c. This is a solution. Okay, this is a part example number 3rd. थर्ड एंड फोर्थ आर वेरी सिमिलर। यहाँ पर कॉस साइन है, यहाँ पर साइन कॉस है, ये आप ट्राई करो। आप मैंने 3 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है, आप 4th नंबर कोशिश करो। आई होप यू डेफिनेटली गॉट द सोल्यूशन, दैट इज द इंटीग्रल। ओके, now I am going to introduce next integral form, that is integral of the type integral of the form or type excuse me, integration
1 upon a plus b cos 2x dx or 1 upon a plus b sin 2x dx or 1 upon a plus b cos 2x plus c sin 2x dx. Very much similar to last type of the integral. जो मैंने 2 लेक्चर के पहले cos स्क्वायर sin स्क्वायर का लिया था, आपको याद है, दैट इज डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय आइदर cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x एंड आइदर पुट tan x और cot x. दैट टाइम sin स्क्वायर और cos स्क्वायर. प्रीवियस टाइप में हमें आज मैंने पहले दो एग्जाम्पल भी लिए. वो टाइप था, यहाँ पर x था, sin x cos x sin x cos x, right? And a b c are the constant, numerator absolutely constant term. That time we put tan x by 2 is equal to t पुट किया था. जहाँ पर x था तो हमने tan x by 2 पुट किया था. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे tan x is equal to t. इसका डेरिवेटिव sec square x dx is equal to dt. Sec square x means 1 plus tan square x dx is equal to dt. 1 plus t square dx is equal to dt because tan square means t square. So what is the term of dx? dt upon 1 plus t square. लास्ट टाइम क्या आया था? 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. यहाँ पर dx कितना आ रहा है? dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. सो एक साइन 2x का फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और एक cos 2x का फॉर्मूला है. cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x. 1 minus tan square x divided by what? 1 plus tan square x. So this is the multiple angle formula because we know the term of tan x is t. So this is 2t upon 1 plus t square. 2t upon 1 plus t square. And this is 1 minus t square upon 1 plus t square. This is a cos 2x and this is sin 2x. ये cos 2x है, ये sin 2x है. ओके, sin 2x एंड cos 2x. सो वेरी क्लियर, वेरी सिंपल. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पल इन द एग्जाम इज वेरी सिंपल. cos 2x sin 2x ये टर्म दिखी तो बिंदास ये सब्स्टिट्यूशन करने का, tan x इज इक्वल टू t. ये डिफरेंशिएशन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ए भी लिखा तो चलेगा. dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. sin 2x is equal to 2t upon 1 plus t square and cos 2x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. So we'll take examples on this type of integral. Okay. Let us see the example on that type. cos 2x sin 2x sin 2x cos 2x. Very simple. सब आप example try कर सकते हैं इसको. देखो listen example number 5. I is equal to integration 1 upon 3 plus 2 cos 2x. अगर आपको बहुत प्रैक्टिस करना है तो सिर्फ आपको इसको प्लस ये कांस्टेंट टर्म चेंज करो. 3 2 4 2 3 3 माइनस 2 1 2 3 4 5 कुछ भी टर्म ले लो, प्लस माइनस से इंटरचेंज करो, दैट बिकम्स द परफेक्ट. सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर tan x इज इक्वल टू t. इमीडिएटली dx लिखो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है, लास्ट टाइम 2 dt था, यहाँ पर dt है. cos 2x 1 minus t square upon 1 minus t square upon 1 plus t square. I is equal to this 1 dx. dx means dt upon 1 plus t square. 3 minus 2 into cos 2x, 2 times cos 2x. 1 minus t square upon 1 plus t square. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 3 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t स्क्वायर
divided by 1 plus t square. This 1 plus t square, 1 plus t square cancel. Okay. Now numerator becomes I is equal to dt divided by, देखो 3t square plus 2t square 5t square plus 1 3 minus 2 plus 1. Now taking 5 common from the denominator, 1 by 5 means 1 by root 5 square dt. 1 by 5 आया था, मैं उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा 1 by root 5 स्क्वायर 1 upon x square plus a square. 1 upon 1 by root 5 is root 5 by 1. कंफ्यूजन न को, यहाँ पर 1 upon 1 by root 5 लिखो. tan inverse of t upon 1 upon root 5 plus c. ये root 5 ऊपर जाएगा, root 5 by 5 1 upon x square plus a square, very first formula of standard integral, root 5t plus c, root 5 by 5 1 by root 5 tan inverse of root 5 tan x plus c. This is a solution of this example. Second 6th number example, I is equal to integral 1 upon 2 sin 2x minus 3. बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जो आप हमने पिछले 2 लेक्चर में सिर्फ यही टाइप के एग्जाम्पल लिए है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, 1 upon 2 sin 2x minus 3. सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, tan x is equal to t, dx is equal to dt upon 1 plus t square. Sin 2x is equal to 2t divided by 1 plus t square. 2t divided by 1 plus t square. यहाँ पर cos 2x था, यहाँ पर क्या है, sin 2x है. सो प्रोसीजर तो सेम ही है. dx ऊपर लिखो, 2dt अपॉन, नॉट 2dt, dt अपॉन 1 plus t square divided by sin 2x 2t upon 1 plus t square minus 3. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो 1 plus t square टर्म डेफिनेटली क्रॉस होने ही वाली है. यू कैन स्किप दैट स्टेप, स्किप कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ सिंपल पार्ट ऑफ कैलकुलेशन. 2 into 2t 4t, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन minus 3t square minus 3t square. ये dt डिवाइडेड बाय ये minus 3 plus 4t minus 3t square, minus 3 minus 4t minus 3t square. अब इसको हम माइनस कॉमन भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे. मेक द कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर एज यूनिटी, dt डिवाइडेड बाय -1 4/3t minus t square dt, 4/3t dt. ओके, मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ यहाँ पर. देखो अब क्या करना है, कैलकुलेशन एक बार चेक करो. दैट साइन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 plus t square डेफिनेटली कैंसल. 2 into 2t is 2t 4t, minus 3 into 1 minus 3, minus 3 into t square it minus 3t square. This 1/3 as it is, dt divided by -1 b square upon 4a square. 16 divided by 4a square is 9, plus 4/9 minus 4/9 plus 4/3t minus t square. -9 minus 4, -9 plus 4, -9 plus 4 is -5/4. Taking minus sign common, t square minus 4/3t plus 4/9, t square minus 4/3t plus 4/9. बेस्ट वे माइनस साइन यहाँ से बाहर ले लो. dt डिवाइडेड बाय, it is √5/2 whole square
plus it is a t minus 2 by 3 square. Square root of t square, square root of 4 by 9, 2 by 3. Middle side minus. Found number first, a square plus x square. ये minus 1 by 3. 1 upon a, root 5 by 2. Tan inverse of, this is term of x, t minus 2 by 3 upon root 5 by 2. 4 by 9 हमने ऐड किया है. b square upon 4a square, b square is what? 4 का square 16, 4a square is 9. करेक्ट है. 4 by 9 हमने ऐड किया, 4 by 9 हमने सब्सट्रैक्ट किया. करेक्शन इज देयर. -9 plus 4, -9 plus 4 is -5 by 9. ये 5 by 9, यहाँ पर 3 है. वेरी इंपॉर्टेंट. ऊपर 3 जाएगा, 3 3 कैंसल. -1 बाय रूट 5, ये 3. तभी समझ में आता है कैलकुलेशन कहाँ पर मिस्टेक हुआ है. इसका डिनोमिनेटर 2, इसका डिनोमिनेटर 3, ये ऐसा नहीं होता है. सो बी केयरफुल अबाउट कैलकुलेशन. मिस्टेक नहीं होना चाहिए. 3t minus 2 upon 3 कैंसिल हो जाएंगे आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दिस वन इज द आंसर. -1 by root 5 tan inverse of what? 3 tan x by 2 minus 2 divided by root 5 plus c. This is a solution of example number 6. बहुत सिंपल प्रोसीजर. अभी पिछले कुछ एग्जाम्पल सिमिलर टाइप के हैं. सो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए. सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है. ऐसे 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व भी है, वो भी आप सॉल्व करो. डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट सोल्यूशन. नाउ विल टेक द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप. 3 एग्जाम्पल है, बहुत सारी प्रैक्टिस करना है. तो और कुछ भी कांस्टेंट टर्म ले लो. dx डिवाइडेड बाय 3 plus 2 sin 2x plus 4 cos 2x dx. Substitute tan x is equal to t, dx is equal to dt divided by 1 plus t square. This is dx. Sin 2x is equal to 2t upon 1 plus t square. Cos 2x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay, here guys, sin 2x cos 2x. Now put here I is equal to integral. Replace dx is equal to dt upon 1 plus t square. This is 3. Sin 2x is 2t divided by 1 plus t square. Cos 2x is 1 minus t square upon 1 plus t square. This equal to, after cross multiplication डिनोमिनेटर डेफिनेटली कैंसिल होने ही वाला है. आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 3 plus 3t square, 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई 4t plus 1 minus t square. 3 into this cross multiplication, 3 plus 3t square, 2 into 2t 4t, ये प्लस 1, ये माइनस टी स्क्वायर. दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा? कैंसिल. आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट आई इज इक्वल टू, देखो यहां पर dt है. 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 plus 1 4. 3 plus 1 is 4. 2t square plus 4t plus 4. Make the coefficient of t square as unity. T square plus 2t plus 2. 4 plus 1 is 3. यहाँ पर 4, ये एग्जाम्पल है ना अपना. ओके, यहाँ पर मिस्टेक हो गई. यहाँ पर 4 लिखना जरूरी था. 4 टाइम्स है, सो इट इज 4 माइनस 4t स्क्वायर. ये 4 टाइम्स है. 4 माइनस 4t स्क्वायर. 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर गड़बड़. 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर इज माइनस t स्क्वायर प्लस 4t
3 plus 4 is 7. 3 plus 4 is 7. ठीक है. सो बेस्ट वे क्या करेंगे, माइनस साइन निकालने से पहले आपने इसको ऐसा 4 7 प्लस 4t माइनस टी स्क्वायर ऐसा लिखेंगे. 7 प्लस 4t माइनस टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है. बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16. 4a स्क्वायर इज 1 प्लस 4 करो माइनस 4 प्लस 4t माइनस टी स्क्वायर. ये b होता है, ये a होता है और ये c होता है. बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1. ओके, नाउ इट बिकम्स, कहाँ पर ऐड सब्सट्रैक्ट करना है, कांस्टेंट टर्म और t के टर्म के बीच में पहले ऐड बाद में सब्सट्रैक्ट. ये बेसिक प्रिकॉशन अगर आपने क्लियर हो गया तो मिस्टेक सॉल्यूशन में कभी भी नहीं होंगे. 7 प्लस 4 इज 11. टेकिंग माइनस साइन, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4. 11 is a square of root 11. t minus 2 होल स्क्वायर. ये भी लिखना एक उसका टेक्निक है. टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी, 4 का स्क्वायर रूट 2 और इस सेकंड साइन माइनस. एक बार अगर फुल फोकस एक एग्जांपल भी ऑब्जर्वेशन किया, ध्यान से देखा तो डेफिनेटली इसका आंसर करेक्ट आता है. 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला नंबर 3 है. 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2. इसको हम a बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को. इसको क्या होता है, ये x होता है. a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला नंबर वो 3 है. 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 2. अब ये होगा आंसर. सिर्फ आपको क्या करना है, 1/2 रूट 11 log ऑफ 80 रूट 11 प्लस tan x माइनस 2 रूट 11 माइनस tan x प्लस 2 प्लस. कांस्टेंट टर्म कलेक्ट भी कर सकते हैं आप. दिस इज द आंसर ऑफ नंबर 3. हर एक के 3 एग्जाम्पल है, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है. और प्रैक्टिस करना है तो देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. ये 3 की जगह पर 5 लिखो, बस करो सॉल्व. ये 2 की जगह पर 4 लिखो, सॉल्व करो. ये 3 की जगह पर 5, ये 4 रिमूव करो, बन गया और 3 एग्जाम्पल. प्रैक्टिस करो, आंसर आ जाएगा. स्मॉल चेंज करना, ये 3 और 3 6 एग्जाम्पल सफिशिएंट है. जो बेसिक उसमें जो प्रिकॉशंस है जहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इंटीग्रेशन. राइट, टाइप तो बहुत सिंपल चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर थोड़ा जोर लगा के देखना है, मीन्स क्या करना है, उसको प्रिकॉशन लेना है, वहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस है वो होने नहीं देना. ओके, सो विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल. देखो थोड़ा डिफरेंट है. ये एक्सरसाइज के लास्ट 2 आखिरी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 8 एंड 9 ऑफ एक्सरसाइज 3.2b. 1 cos x माइनस साइन एक्स. एक cos x है, साइन x है, तो आपने जो प्रीवियस मेथड थी इंटीग्रल, वो मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. बट इसको थोड़ा हम अलग लॉजिक से सॉल्व करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है. देखो ये cos x है माइनस साइन एक्स. सो क्या करेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1/√2 से. 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, 1/√2 से डिवाइड किया. देखो आगे आगे क्या होता है, देखो 1/√2 ये एज इट इज. 1/√2 से आप अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/√2 cos x, 1/√2 sin x dx. मल्टीप्लाई 1/√2 बाहर लेंगे आप, इसको कांस्टेंट टर्म है, 1/√2 आउटसाइड. ये 1 अपॉन इस 1/√2 को मैं cos π/4 लिखता हूँ, ये cos x, और इस 1/√2 को मैं sin π/4 लिखता हूँ. साइन 45 डिग्री की वैल्यू है. sin 45 डिग्री and cos 45 डिग्री is 1/√2.
सो दोनों का कोएफिशिएंट 1 था, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1/√2। अब देखो ये कंपाउंड एंगल बन गया, cos cos माइनस sin sin, दैट इज cos a प्लस b 1/√2 1 अपॉन cos a माइनस b dx, cos a प्लस b dx। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या, cos a cos b माइनस sin a sin b, so that becomes cos pi/4 plus x। 1 by cos is what, sec x plus pi/4 or pi/4 plus x to be same। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला कौन सा है, sec x का इंटीग्रेशन। sec x का डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, sec x इंटू tan x, बट sec x का इंटीग्रल क्या है मैंने प्रूव करके दिया था, log ऑफ sec x प्लस tan x और log ऑफ tan x/2 प्लस pi/4 प्लस c। कौन सा भी एक फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल गेट द करेक्ट मार्क। 1/2 log ऑफ sec x प्लस pi/4 प्लस tan x प्लस pi/4, ये उसका आंसर, राइट। सो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, सो अपन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2x रहता तो अपन 2 लिखते थे हम, 3x रहता तो अपन 3 लिखते थे, तो दैट इज ओनली x। सो x का कोएफिशिएंट 1 है, सो नो नीड टू राइट अपॉन 1 इन द डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? दिस इज वन ऑफ द सिंपल। सो यहाँ पर अब देखो ये 8 नंबर एग्जाम्पल इमेजली हम 9 नंबर सॉल्व करेंगे। ओके, let us see the last example of this exercise 3.2b। सेम टाइप के हैं। नंबर 9, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन cos x माइनस √3 sin x dx। अब सेम यहाँ पर 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√2 से डिवाइड करेंगे। नॉट एवरी टाइम ऐसा ही हो सकता है, ऐसा नहीं, कुछ अलग भी हो सकता है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √3 है, तो एंगल में √3/2 भी टर्म है। 1/√2 नहीं, 1/√2 से नहीं चलेगा, यहाँ पर 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √2 नहीं, 1/2, 1/2 से डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई, √3/2 sin x। देखो क्या किया मैंने, 1/2 से डिवाइड किया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 cos x, √3/2 sin x। ये तो एंगल है 1/2 एंड, सो ये यहाँ पर cos आए तो और अच्छा लगेगा। 1/2 मीन्स cos 60 डिग्री, इसको हम sin 30 भी कर सकते हैं। ये sin 30 है, ये cos 30 है, ये cos 60 है, ये sin 60 है, राइट। दोनों में से कौन सा भी करो तो भी सेम। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर cos में कन्वर्ट करता हूँ। ये 1/2 अब साइन में करेंगे, लास्ट टाइम cos की क्या था, साइन में करेंगे। ये sin 30 है, sin π/6 cos x, ये cos π/6 sin x dx। sin 30 1/2, cos 30 √3/2, sin 30 cos 30, sin a cos b minus cos a sin b, sin a cos b minus cos a sin b, it is what, sin a minus b, so it is 1/2 outside the integral, 1 upon, it is a sin π/6 minus x, π/6 minus x, sin a cos b minus cos a sin b, sin a minus b, sin π/6 minus x, 1 upon sin is cosec, cosec π/6 minus x dx, integral of cosec, log of cosec minus cot plus c। What is integration of cosec x? Log of cosec x minus cot x. What is integration of sec x? Log of sec x plus tan x. Integral of cosec x, log of cosec x minus cot x। बट यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -1 है, सो अपॉन -1 लिखो, नहीं तो इंटू -1 लिखो टू बी सेम। ये उसका आंसर। बट सपोज यहाँ पर ये 1 1 1 √3 इसके जगह पर अगर 3 4 5 6 टर्म आ गई, सपोज ऐसा एग्जाम्पल है, 1 अपॉन ये sin x
plus b cos x which are not in the standard form. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1/a sin x प्लस b cos x. ये एक इंटीग्रल का टाइप है. ए बी आर नॉट इन द 1/1 और 1√3 ये फॉर्म में नहीं है, तो ये फॉर्म है 1/a sin x प्लस b cos x. एट दैट टाइम वी पुट हियर a इज इक्वल टू cos थीटा और sin थीटा एंड b इज इक्वल टू sin थीटा. इसको cos थीटा पुट करो, इसको sin थीटा पुट करो एंड थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय दिस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसका a की जगह पर cos थीटा रखो, b की जगह पर sin थीटा रखो. ये cos थीटा sin x प्लस sin थीटा cos x, दैट इज व्हाट, दैट इज अ sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट अगेन बिकम sin a प्लस b फॉर्मूला. थीटा फाइंड करो, थीटा क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, b बाय b बाय, सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स b बाय. ये भी मेथड है. Okay, so this is sufficient for these examples. So on next day we'll start next exercise 3.2c with next type of integral. Okay, so today is sufficient. We'll stop here. Thank you very much.